Hey YouTube, thanks for visiting. Hopefully you are doing well. So in this session we are going to discuss the general aptitude. Okay. So this is the paper session net December 2019 Assam and Meghalaya paper. Okay. So one of our subscriber requested to make the aptitude solution of these papers. Okay. So that's why I make this video, and I think this is also helpful for all of you guys, because this is one paper, so you should practice one extra paper for your upcoming CSR net, and you all know that practice makes the perfect. uh, am I right or wrong? Practice makes perfect. Okay. सो चलो कोई ना, और एक पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं। एंड ये भी CSR नेट का ही पेपर है, बस ये जो पेपर है, ये जो सेक्शन था आसाम एंड मेघालय का जो है पेपर अलग हुआ था, तो ये उस सेक्शन का पेपर है। एंड ऑल दो देखो CSR नेट का जो रिसेंट ईयर का जो पार्ट ए का सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट विल बी इन द description and also here in the I tabs. Okay, so you can check those playlist, check the playlist for upcoming for the पार्ट ए। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा के पूरा पेपर वाइज एंड टॉपिक वाइज भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, यानी और दो आई थिंक 2 पेपर्स न्यू पेपर्स, ठीक है, मतलब CSR लेवल का 2 एक्स्ट्रा पेपर भी मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो करते स्टार्ट इस सेशन का। ओके, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to this video, share it with your friends and consider subscribing to my channel. Okay, so let's start. So the question number 1, it says that water drips out from the bottom of a cylindrical bucket. Okay, that is initially full. The rate of dripping is proportional to the height of the water column in the bucket. So there is a bucket, basically the shape is like a cylinder. Okay, so if the rate of the dripping at the half height is r, okay fine, then the average rate of dripping until the bucket becomes almost empty. Okay fine. So see, let us take, let rd be the rate of dripped water from here. Okay, so here just a hole and water drip from this hole. Okay, so rd, then and h, if h is the height of the bucket, then clearly from the first line it is proportional, that is r is varies as h. Okay, now so h is a variable. Okay, now if we take initially, okay, initially at when the bucket is full, so if we take initially at h naught, this value is capital H. Okay, and one line here it says that if the rate of dripping is at half height, that is at h by 2, the value of rd is r. Okay, so at the height h equal to capital H by 2, so this is capital H by 2 because we take this is h, this h equal to h, this is variable and this is the value. If we can take, okay, and at the value or you can take at rd equal to r, suppose the value of h should be h by 2, and at this velocity, that when h equal to 0, the rd is what we don't know. Okay, that is the water when completely finished. Okay, so what is the value of rd, we don't know. Okay, now rd varies as h, so we can write rd is equal to k into h. Okay fine. Now we have, okay, what at h equal to h by 2, rd equal to r, so we can put here r equal to k into the value of h should be h by 2. So yeah, and we can find the value of k from here. So k equal to 2r by h. Okay, k equal to 2r by h, that is what is the value of rd. So the general value is rd equal to 2r by h. Okay, this is h not r, 2r by h into this small h. Okay, so this is the value. Now at h equal to h, so this h max equal to, all you can say h max equal to capital H, that is the maximum possible height equal to capital H. Okay, so now if we take, we now get 3 points here, 1 point, middle height of 1 point, and the last height, that is when h equal to 0, we get 1 point. Okay, so at the point that is when water is full, the value of h is equal to capital H, and the value of rd, this is equal to what, this one, we just put the value. So 2r by h into h. Okay, we put here h equal to h, at h equal to h by 2, what is the value of rd? Rd equal to 2r by h into
h by 2, 2r by h, this is h into h by 2. So this is clearly 2r and this is h goes cancel r. Okay, now when h goes to 0, that is the value of h goes down to 0. Okay, so when h equal to 0, then rd equal to what? Rd equal to 2r by h into a value of h should be 0. So this is equal to 0. Now we get three values of rd, that is the rate of dripping until the what? Rate of dripping. So we have to find the average rate of dripping. So we get 3 value and 3 points. So we can find easily by using the average formula. So rd plus rd plus rd at the 3 point, the pointer this and this by 3. So this rd sum by 3. So average equal to what? Average equal to 2r plus r plus 0 by 3, which is equal to similarly same r. Okay, so this is the value or answer of this question, option 2. Now next question. So in an unicellular organism, so these questions I am not understanding this question. Okay, I just say you, I think answer is B. Okay, so this is a general science questions or biological problem. Okay, so I am not actually understand this question, so I am trying but not solvable. So if anyone you can solve this problem, obviously comment me in the comment section below, or you can सेंड मी द सॉल्यूशन इन माय टेलीग्राम चैनल. सो टेलीग्राम लिंक आपको जो है यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो आप सेंड कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. गवर्नर इज टू स्टेट, देन डबल इज टू व्हाट. सो सी, गवर्नर जो है स्टेट का हेड होता है. ठीक है, स्टेट का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर. नाउ शिप इज टू कैप्टन, दैट मीन्स इस टाइप का रिलेशन, स्टेट का जो हेड होगा वो होगा गवर्नर, कैप्टन शिप का हेड, कैप्टन का जो हेड है वो शिप है. नो, if this says converse, captain is to ship, then captain ship का head होता है, that means वो correct होता है, but ये not true. Now admiral is to navy, navy का जो head होता है उसको कहते हैं admiral. ठीक है, और admiral. ठीक है, this is correct. Now prisoner is to jail, prisoner is to jail. If this says jailer, then prisoner is to jailer, मतलब prisoners का जो head होता है jailer. If this said jailer, then it should be true, but it said jail. No, this is not correct. स्टूडेंट इज टू टीचर, टीचर का जो हेड होता है वो होता है स्टूडेंट, कभी नहीं होता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देखो कैसे रिलेशन है, स्टेट का हेड होता है गवर्नर, सो वी हैव टू फाइंड दिस सेम टाइप्स ऑफ रिलेशन. कैप्टन जो है शिप का जो हेड होता है स्टेट का हेड होता है. नो, कैप्टन का हेड शिप नहीं होता है, कभी भी नहीं. नेवी का हेड होता है एडमिरल, प्रिजनर का हेड जेल नहीं, जेलर होता है. टीचर का हेड टीचर और हेड मास्टर बोलता, तो ये ऑप्शन भी सही बनता. ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 says that person X, okay, person X purchases a house at a price P and sells to Y at a profit 10%. Y sells back to X incurring a loss of 10% as a result. What should happen? So suppose the price that is X purchase the house at rupees 100, X sells Y, that is Y purchase from X, Y purchase, that is X sell at a profit of 10%, that is Y purchase from X at a rupees 110. Now Y sell back to X as a loss of 10%. Now Y sells at 10% loss. Okay, so 10% of 110, this is equal to 11, we all know that. So that means Y sells back to X at what price? At the price you should see here 110 minus 11, 110 minus 110 minus 11, so this is 99. Now X actually purchased at the rupees 100, it sells to Y at a 10% profit, that is here X makes money rupees 10, and here when X buy back from Y the house, he also makes a profit of rupees 1, because the X purchase at the rupees 100. So total X profit of X is 11 rupees, and 11 rupees means this is 11% of 100. I think, yeah, okay. So X makes a profit of 11% of P.
11% of 100, this is equal to 11, you all know that. Okay, that means X makes a profit total 11% of P. Okay, because P we here we take the value of P is 100. Okay, when these types of problem comes in the exam, you always take the price or the capital like 100. Okay, so then the problem will be very easy. Now next problem, it says that three metal cubes whose diagonals are root 3, 6 root 3 and 8 root 3 units respectively melted to make a new cube, the side of the new cube. Okay, so here it is given the diagonals. Okay, so how can we find the value of the side? Just a second. How can we make the value of the, okay, so how can we find? If we will know that if A is the side of the cuboid or cube, then the diagonal this is equal to root 3a. Okay, so these are the value of the diagonals, that is the sides of the cubes are respectively 1, 6 and 8. Okay, so 1, 6 and 8 are the what value of the sides. These are the sides of the three cubes. Now if we meld, then the volume is 1 cube, volume is 6 cube, volume is 8 cube. Okay, fine. So this is 1, this is 216 and this is I think the value of this is 600. What is the value of 8 cube? 64 into 6, 4 384, oh sorry, 8 2 and 512. Okay, so this value is 512. So total volume equal to this 512 plus 216 plus 1, this is equal to 729, which is equal to 9 cube. Okay, so the side of the new cube should be 9. This is the answer. Okay, next question. It says that which of the following graphs correctly shows the growth of a sapling to mature tree? Sapling means जो छोटा सा जो गाछ पेड़ का जो होता है ना, वो वाला. ठीक है, दिस इज सपोज अ पेड़ एंड ये बड़ा होता है ऐसे. ठीक है, तो sapling. Now constant rate, this graph says the constant rate, that is as time the height of the tree should always increase, but no, it is not true. We all know that the any tree क्या होता है, जो गाछ का हाइट होता है वो एक टाइम तक बढ़ता है, देन वो फिक्स रहता है. ठीक है, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, जो जंगल होता है, वो सब ने आप लोग देखे हो. ठीक है, तो ये नहीं बनेगा. ये होता है कि एक टाइम से बढ़ रहा है, देन मतलब जो है इंक्रीज हो रहा है, देन फिर से डिक्रीज हो रहा है. बट ऐसे जो है ट्री का हाइट नहीं होता है, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, हाइट ऐसे नहीं होता है. ठीक है, हाइट क्या होता है, एक टाइम तक वो बढ़ता है, देन फिक्स हो जाता है. ठीक है, तो देखो ये ग्राफ सेज दैट, देखो यहाँ से कोई एक सपोज आप पेड़ लगाया, देन ये इंक्रीज हुआ, एंड देखो ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, मतलब सेम रह रहा है, मतलब यही होगा करेक्ट आंसर. मतलब एक टाइम तक जो हाइट ऑफ द सैपलिंग होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, देन आफ्टर सर्टेन ईयर्स और आफ्टर सर्टेन टाइम इट शुड बी फिक्स्ड. ओके, सो दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू. बढ़ेगा देन झटके से जीरो हो जाएगा, ऐसे तो जो हाइट होता है ट्री का वो नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7. It says that the following are three positions of a die with numbers 1 to 6 written on its faces. Then the number 6 appears on the faces opposite that of. Okay, fine. देखो यहाँ पर क्या है, 1, 5 एंड 2. यहाँ पर 2 का पोजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, जो है हॉराइजेंटली आप इसको ऐसे घुमा रहे हो. ठीक है, देखो 2 का पोजिशन देखो आप, सिर्फ यहाँ से यहाँ, 5 का पोजीशन फिक्स. ठीक है, तो 2 का पोजीशन यहाँ से यहाँ आया, देन 4 का पोजीशन ऐसे ही आएगा. मतलब 2 का ऑपोजिट में क्या है, 2 का ऑपोजिट में मतलब यहाँ कौन था, यहाँ 4 था. देखो 1 था,
4 था देन 2 था, ऐसे घुमाओगे तो 4 यहाँ आ गया, देखो ये वाला, दैट मीन्स 1 का ऑपोजिट में क्या है 4 है। नेक्स्ट देखो ये ऐसे है, 2 यहाँ पर फिक्स्ड है, मतलब यहाँ जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर था 1 तो चला गया इस साइड, ठीक है, देन गया फिर से बैक है, देन बैक से यहाँ पर आ गया 1, ठीक है, देखो 1 यहाँ पर आ गया इससे इसमें, तो देखो इससे इसमें 1 आ गया, मतलब क्या है 1 का ऑपोजिट में क्या था, यहाँ पर 1 था, 1 का ऑपोजिट में क्या था 4 था, वो तो मैंने लिख ही दिया। देन देखो जस्ट सेकेंड, हाँ 5 था यहाँ पर, ठीक है, तो 5 2 टाइम्स घूम रहा है, ठीक है, 5 यहाँ पर था ए से एंड बैक गया, तो 5 का ऑपोजिट में क्या है, अब सामने क्या है 3 आया है, तो 5 का बैक में जो था वो 3 था, यस। देखो 5 यहाँ पर था, 2 टाइम्स घुमाओगे देन इस पोजीशन में जाएगा, देन बैक पोजीशन में जाएगा एंड 3 फ्रंट में आ गया, तो 5 का ऑपोजिट में 3 है, तो और एक ही पेयर बचा है जो मतलब बाकी क्या क्या है 6 एंड 2 जो ऑपोजिट में रहेगा, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, देन जो बचा है 6 का ऑपोजिट 2, तो क्या बोला है 6 अपीयर्स ऑन द फेस ऑपोजिट ऑफ, यहाँ पर होगा 2 ऑप्शन बी। देखो नॉर्मली जो होता है ठीक है, ये मतलब क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए हैं, ठीक है, बट नॉर्मली जो क्यूब होता है ना ऑपोजिट फेसेस का सम ऑलवेज 7 होता है, ये आप याद रखना, ठीक है, जो नॉर्मल क्यूब होता है आप देखोगे तो यही रहता है, ऑपोजिट क्यूब्स का जो सम होता है मतलब ऑपोजिट में जो पॉइंट्स रहते हैं उसका सम 7 रहते हैं, बट इस केस में ना ये आपको देखना होगा, ये ऐसे नहीं गिवन है, ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पर गिवन नहीं है। देखो 2 यहाँ से यहाँ पर घूम रहा है, देन उस टाइप मतलब फर्स्ट ऐसे घूम रहा है, देन क्या घूम रहा है ऐसे, ठीक है, आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर लेना तो अच्छा होगा इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स biologists are thrice many as chemists, whereas the physicists are twice as many as biologists. If the chemists are there are 5 chemists in the group, then the total number of these types of researchers. देखो chemist क्या है 5, then chemist है 5, then बोला है biologists are thrice as many chemists, तो biologist कितना है 3 times of chemist, 3 into 5 this is equal to 15, and physicists are twice as many as biologists, so physicists 2 into 15 this is equal to 30, so total person 20 and 30 50 is the correct answer. Next question, देखो क्या बोला है, what is the area of the figure shown below assuming that all small triangles be equilateral and side equal to s, तो देखो यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, all are s s s s s s and s, so देखो ये टोटल जो ट्रायंगल हो रहा है ये ट्रायंगल इसका साइड क्या होगा 3s, s प्लस एस प्लस एस एंड 3 और छोटा ट्रायंगल आपके पास बचा है, ठीक है, तो टोटल एक बड़ा ट्रायंगल जिसका साइड है s एंड 3 और छोटा ट्रायंगल जिसका साइड है s, 3 into s, s i d साइड, ओके। देन व्हाट इज द इक्विलैटरल एरिया फार्मूला, सो √3/4 इंटू बड़ा वाला ट्रायंगल 3s का स्क्वायर प्लस 3 छोटा ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दिस इज द आंसर, सो √3/4 इंटू 9s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर, √3/4 इंटू 12s स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3√3s स्क्वायर, आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट the father of my biological son is the only child of your parents, okay, so what statement can be true, under no condition, no ये तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन 4 देखो only if unmarried man, बट यहाँ पर क्या है बायोलॉजिकल सन मतलब उसका बेटा है तो वो ऑब्वियसली मैरिड है, नहीं तो कैसे सन आएगा जनरली, ठीक है, देखो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। देखो इफ एन ओमैन सेज, वी गो थ्रू ऑप्शंस, ओके, सो इफ एन ओमेन सेज, देखो एक ओमेन बोल रहा है द फादर ऑफ माई बायोलॉजिकल सन, मतलब मेरा जो बेटा है उसका जो बाप है फादर है, दैट मीन्स जो ओमेन उसका हस्बैंड एक्चुअली इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब उसका जो फादर है मतलब उसका हस्बैंड का जो फादर है उसका इकलौता बेटा है, ठीक है, दैट मीन्स ये, ठीक है, हो रहा है सही से, ठीक है,
करेक्ट आंसर। ओके देखो ओनली इफ द मैरिड मैन सेज, नो मैरिड मैन सेज बोल रहा है, मैरिड मैन एक बोल रहा है, देखो मैरिड मैन मैं सपोज एक मैरिड मैन, मेरा जो बायोलॉजिकल फादर ऑफ माई बायोलॉजिकल सन, फादर ऑफ माई बायोलॉजिकल सन, बट मेरा बायोलॉजिकल जो सन है उसका फादर तो मैं ही हूँ और क्या है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं जा रहा है सही से। एक ओमेन बोलेगा जो शादीशुदा है उसका हस्बैंड को बोल रहे हैं, मतलब मेरा बेटा का जो फादर है वो उसका पेरेंट का इकलौता बेटा है, ठीक है ऐसे बोल रहा है, ठीक है तो ये सही से जा रहा है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो द प्रोडक्ट ऑफ द 10 नंबर्स, ओके 10 11 12 19 ब्ला 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 बहुत सारे हैं, डिविजिबल बाय 10 टू द पावर x। सो देखो 10 टू द पावर x व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, देखो यहाँ से 10 कितना आ सकता है वो फाइंड करेंगे, ठीक है देखो यहाँ से एक 10 आ रहा है, फाइन नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ से क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, 19 में से तो 2 और 5 नहीं आएगा, देखो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, सो वी ऑब्जर्व फ्रॉम व्हिच नंबर 2 एंड 5 वी कैन गेट 2 एंड 5, ओके फाइन। सो फ्रॉम हियर देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके 23 से 2 एंड 5 नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, ओ ये तो हो गया, ये से नहीं निकलेगा क्योंकि बाकी जो नंबर है वो एक साइड रहेगा एंड 10 का जो मल्टीपल होगा वो सामने आएगा, ठीक है तो उससे ये फाइंड करने के लिए इजी होगा, ठीक है। 25 से क्या आ रहा है 5 इंटू 5, फाइन। 33 से 3 इंटू 11 ये नहीं आएगा, 35 से 5 इंटू 7 आएगा एंड 50 से क्या आएगा देखो 10 एक आ रहा है इंटू 5, तो देखो ये 10 एंड ये 10 इंटू 10 ले रहा है, ठीक है 1 2 1 5, यहाँ से एक 10 ले रहा हूँ, ठीक है देन देखो ये 1 2 यहाँ 1 5, यहाँ से एक 10 ले रहा हूँ, ठीक है देन देखो यहाँ पर एक 5 है स्टार दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ से एक 10 ले रहा हूँ मैं, ठीक है अच्छा ठीक है एंड और अच्छा देखो यहाँ पर एक 10 है, यहाँ पर एक 5, यहाँ से एक 10 आएगा और कुछ 10 यहाँ से नहीं आएगा, तो ये बन रहा है 10 टू द पावर 6। देखो तो 10 टू द पावर 6 इंटू ये जो रिमेनिंग नंबर्स पड़े हैं वो तो है यहाँ पर एंड डिविजिबल बाय 10 टू द पावर x, तो x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द स्ट्रेट लाइन y1 इक्वल टू 4, फाइन देखो y1 इक्वल टू 4 मीन्स ऐसे, सपोज दिस इज y1 ओके एंड दिस इज x1 and y2 equal to sin x, y2 suppose y2 this is equal to sin 4x, okay so y2 का वैल्यू यहाँ पर है, y1 का वैल्यू 4 है, so y देखो sin x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, ठीक है तो मॉड sin 4x साइन कुछ भी हो उसका वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है तो 1 जो ये जो y2 है ना y2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, y2 का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, बट यहाँ पर y1 का वैल्यू है 4, तो 4 एंड ये y1, तो ये जो y2 का ग्राफ होगा वो कभी 4 को टच ही नहीं कर सकता है, इंटरसेक्ट तो दूर की बात है, ठीक है मतलब साइन x का साइन 4x का जो वैल्यू होगा वो ऐसे होगा, ठीक है कहीं यहाँ पर 1 लाइन में ये बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है बट ये बोला है यहाँ पर y1 इक्वल टू 4 कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, ठीक है देखो साइन 4x का वैल्यू 1 मतलब y इक्वल टू सपोज साइन 4x कुछ भी गिवन है, y इक्वल टू साइन 4x, तो y का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1 एंड ये बाउंड मतलब ये -1 एंड 1 में साइन का जो कर्व होता है बाउंडेड होता है एंड y1 मतलब यहाँ पर जो ये कर्व है y सपोज y इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पर है बट ये तो y इक्वल टू सपोज 1 पे ही खत्म हो रहा है साइन का कर्व, बट ये y इक्वल टू 4 कभी भी नहीं जा सकते, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट in an examination if more than 15 questions are attempted, only first 15 are evaluated, okay answers awarded +2 if correct and -5 if wrong, a candidate answer 19 questions and get 15 marks, how many questions are correctly answered in the first 15 added, so 19 questions का यहाँ पर कोई बात नहीं है, 19 होता है 18 17 कुछ भी है, 15 से ज्यादा मतलब 15 ही काउंट होगा, ठीक है। we go through options of these questions, if 9 questions are correct क्योंकि we have to find the correct question, if 9 questions are correct, okay तो 9 क्वेश्चन करेक्ट मतलब 19 आंसर दिया है मतलब 15 तक काउंट होगा, मतलब 6 जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, इसके लिए मार्क्स होगा 18
एंड इसका लिए क्या होगा -3, सो दिस इज 15 बिकॉज -0.5 मार्क्स गेन कर रहा है, -0.5 मार्क्स गेन कर रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, दैट मीन्स -3 गेन कर रहा है फॉर 6 रॉन्ग आंसर, दैट इज 15 and we have it is given question and get 15, yes this is 15, so the first option is correct. You can go through another option but these are not correct. Okay. Now birds beats their wings up and down but propel themselves forward because the neck is held at an angle with the body axis. No, neck से कोई संबंध नहीं है जो है birds का उड़ने का, कभी भी नहीं है. फ्लाइट फेदर्स मेक्स एन एंगल विद द विंग, यस दिस इज ट्रू. जो उसका जो फ्लाइट का जो फेदर्स होता है या पलक, पक्षी का जो दाना में होता है पलक, तो वो एंगल बना रहता है विंग एक्सिस से. ठीक है, तो इसलिए पक्षी जो है मतलब बर्ड जो है ना वो उड़ता है. ठीक है, तो देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, नो इससे भी कोई मतलब नहीं है. एंड देयर टेल इज फैन शेप, नो टेल से भी कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, जो प्लेन है ना यानी कि एरोप्लेन, ठीक है, उसका भी सेम मतलब यहाँ पर ये जो है ना उसका भी देखोगे आप विंग्स में एंगल बना रहता है. ठीक है, उसके लिए वो फॉरवर्डली उड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत पीछे ऐसे एंगल बना रहता है. ठीक है, सामने मतलब फॉरवर्ड में जाता है. ठीक है, प्रोपेल करता है तो इंजन प्रोपेल करता है तो उसके लिए वो फॉरवर्ड में जाता है, एंगल बना रहता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following graph shows the speed and acceleration of the ball thrown up from the earth and falling back vertically? Okay, fine. देख फास्ट स्पीड का ग्राफ देखो, स्पीड का ग्राफ जो है ऐसा एंड एक्सेलरेशन डॉटेड ग्राफ. ठीक है, फास्ट स्पीड का देखो स्पीड से ही काम चला जाएगा. ठीक है, देखो एक स्पीड में हो रहा है मतलब स्पीड जितना ऊपर जाएगा उतना कम होता जाएगा एंड देन जब एक पॉइंट में फिक्स्ड होगा मतलब 0 होगा स्पीड, देन फिर से जब ग्रेविटी की तरफ आएगा स्पीड और बढ़ता रहेगा. कौन सा ग्राफ? टाइम का रिस्पेक्ट में बढ़ेगा एंड वन टाइम में फिक्स्ड होगा, देन फिर से टाइम का रिस्पेक्ट में स्पीड बढ़ेगा. ठीक है, देखो ऑप्शन ए का ग्राफ देखो, एक स्पीड से जा रहा है देन जितना टाइम जा रहा है स्पीड कम होता जा रहा है, एक पॉइंट में 0 देन फिर से ज़्यादा. ये मतलब स्पीड का सही ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन का देखना ही नहीं है आपको. ऑप्शन सीधा 1 करेक्ट. बाकी देखोगे तो आप देख सकते हो स्पीड यहाँ पर बोल रहा है ये जो स्पीड का ग्राफ है एक स्पीड में चल रहा है देन पूरा के पूरा 0 हो जाए. नो, 0 के पार 0 हो रहा है देन फिर से बढ़ेगा ना, ये नहीं होगा. यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्व होता है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कार्वली मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है. टाइम का रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है ये कार्व. ठीक है, टाइम का रेस्पेक्ट में जो बॉल का स्पीड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एक टाइम बढ़ेगा मतलब सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जितना टाइम होगा बढ़ेगा, फिर से देन एक टाइम में 0 होगा, देन फिर से और जो टाइम होगा उससे भी बढ़ेगा. ठीक है, तो कार्बुलर नेचर नहीं होगा. ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन जैसा नेचर होगा एंड ये तो नहीं बनेगा. ऑप्शन ए सीधा करेक्ट. ठीक है, एक्सीलरेशन को आपको देखना ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ग्राफ शोज दैट द पॉपुलेशन सॉलिड लाइन एंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी ऑफ द कंट्री ओवर सेवरल ईयर्स. तो ये जो है ये क्या है पॉपुलेशन का एंड ये जो है ये है जीएनपी का. फाइन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ग्राफ? ओके फाइन. द रेट ऑफ चेंज इज सेम फॉर बोथ पॉपुलेशन एंड जीएनपी. नो, देखो कार्व दोनों तो अलग है तो सेम रेट ऑफ चेंज तो कभी नहीं हो सकता है. द पॉपुलेशन हैज ग्रोथ फास्टर देन जीएनपी ओवर द एंटायर पीरियड. पॉपुलेशन का कार्व देखो इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज का जो रेट हो रहा है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, देन बढ़ रहा है, देन कम हो रहा है. बढ़ रहा है पॉपुलेशन बट रेट ऑफ इंक्रीज जो हो रहा है ना, रेट ऑफ इंक्रीज वो फिक्स नहीं है. बट यहाँ पर जीएनपी देखो फिक्स्ड टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये भी नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ग्रेटर देन द बिगिनिंग. पर कैपिटा इनकम मतलब जीएनपी बाई टोटल पॉपुलेशन होता है पर कैपिटा इनकम. इसका जो फॉर्मूला था जीएनपी. देखो यहाँ पर 1 से 2 एक अब मार्क बना लो तो 1 2 3 4 एंड 5. सो दिस इज लाइक द पॉइंट इज लाइक 1.2. ओके, एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज सपोज 1.4. देखो 1.4 की नियर अबाउट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो जीएनपी एट दिस टाइम क्या हो रहा है? जीएनपी एट दिस टाइम
तो जीएनपी एट दिस टाइम मीन्स टोटल सॉरी पर कैपिटा इनकम हो रहा है जीएनपी बाई 1.4. So this is 6/7, that is like 0.8 something. Okay, 0.8 something. Then at this point देखो 2.2, 2.3, 4, 6. So sorry, like you can say like 2.8. This is suppose 3, 2.8, 2.6, 2.4. So this is like 2.8 by पॉपुलेशन मीन्स अप्रोक्सीमेट 3 निकल लेते हैं, ठीक है. 3 के कम है बट 3 को लिख लेते हैं, ठीक है. 3 तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 30/28, दैट इज 14/15. ये कैसा बनेगा 0.9 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट. तो देखो बिगिनिंग में एंड में क्या बोला है, पर कैपिटा इनकम एट द एंड इज ग्रेटर देन, एंड में मतलब 0.9 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.8 अप्रोक्सीमेट, ठीक है. तो ये सीधा सीधा करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, एक एलईडी बल्ब एंड एलईडी बल्ब कॉस्ट 5 times as much as the filament bulb but consumes 1/5 of the electrical power. If C is the cost of the filament bulb and P is the electric power tariff, if the extra cost of the LED bulb will be recovered. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है. एक एलईडी बल्ब है जिसका कॉस्ट है फिलामेंट बल्ब से 5 गुना ज्यादा, बट ये जो एलईडी बल्ब है ये 1/5, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल मतलब फिलामेंट बल्ब जो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं ना उससे 1/5 टाइम्स इलेक्ट्रिक यूज करता है. तो क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द एलईडी बल्ब विल बी रिकवर्ड एट द टाइम. ओके फाइन. साफ यहाँ पर क्या गिवन है, फिलामेंट कॉस्ट जो फिलामेंट बल्ब है, कॉस्ट ऑफ द फिलामेंट बल्ब क्या है सी है, ठीक है. एंड देन कॉस्ट ऑफ द एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब का जो कॉस्ट है वो होगा 5C, ठीक है. नाउ कॉस्ट जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक यूज कर रहा है क्या है फिलामेंट बल्ब जो इलेक्ट्रिक यूज कर रहा है वो है सपोज P. ओके, तो एलईडी बल्ब का क्या होगा, एलईडी बल्ब का होगा P/5, क्योंकि P इज द इलेक्ट्रिक पावर टैरिफ. देखो टैरिफ होगा तो यहाँ पर सपोज टी टाइम में कितना इलेक्ट्रिक ये यूज करेगा TP. टोटल कॉस्ट होगा मतलब सपोज कोई एक टाइम, ठीक है, टाइम इक्वल टू T, ठीक है. तो T टाइम में यूनिट टाइम, सपोज यूनिट ले लो, कोई एक यूनिट ले लो, तो यो T टाइम में जो फिलामेंट बल्ब होगा T टाइम जलेगा तो उसका कॉस्ट कितना आएगा T इंटू पी. P इज द पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि टैरिफ बोला है मतलब पर यूनिट कॉस्ट बोला है, ठीक है. तो एलईडी बल्ब उस टाइम में कितना खर्च करेगा इलेक्ट्रिक, T/5, ठीक है, 5T/5. तो ये ज्यादा मतलब ये जो कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिक का कॉस्ट जो फिलामेंट बल्ब होगा उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक कॉस्ट ऑफ एलईडी. तो कितना है वो है TP माइनस TP/5. ये है इलेक्ट्रिक कॉस्ट, मतलब ये है इलेक्ट्रिक कॉस्ट ऑफ द फिलामेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक कॉस्ट ऑफ द एलईडी बल्ब. तो ये है टोटल जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है. एंड यहाँ पर इस दोनों का प्राइसिंग कॉस्ट कितना है, प्राइसिंग कॉस्ट जो है 5C माइनस 4C. ये टाइम लगेगा तो यहाँ से T इजीली निकल जाएगा, ठीक है. तो देखो सो 4TP/5 दिस इज इक्वल टू, दिस इज ओनली C, दिस इज इक्वल टू 4C. तो दैट मीन्स TP/5 इक्वल टू C. दैट मीन्स T फाइंड करना है 5C/P, ठीक है. देखो और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस प्रॉब्लम का, बहुत वाइटल है. 5C/P. देखो T इज सपोज इज द टाइम, ठीक है, जो मतलब दो बल्ब जो है ना वो जल रहा है, ठीक है, T टाइम से. मतलब T टाइम में इलेक्ट्रिक कॉस्ट इसके लिए आएगा TP, एलईडी के लिए आएगा TP/5, क्योंकि ये 1/5 मतलब कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक को. तो इलेक्ट्रिक का जो प्राइस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्राइस ज़्यादा किस में होगा, फिलामेंट बल्ब में. तो फिलामेंट बल्ब एंड जो एलईडी बल्ब का इलेक्ट्रिक प्राइस का डिफरेंस जो है, एंड वो
सेम होगा, क्योंकि ये सेम होगा तभी ये जो है रिकवर करेगा, ठीक है। बहुत मतलब क्वेश्चन जो हट के है, ठीक है। तो वो दोनों, इस दोनों का प्राइस कितना है, प्राइस का फर्क कितना है, जो फर्क है वो है 5c माइनस सी 4c। तो ये एंड ये सेम करोगे तो टी का वैल्यू यहाँ से निकल में आएगा। ये जो है इस टाइम में जो है प्राइस कॉस्ट जो है मतलब एलडी का जो ज्यादा हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सीधा सीधा करेक्ट है। नेक्स्ट, an ant finds a sugar heap having 1000 grains. It takes 1 grain back and anthill मतलब जो पिपरे जहाँ पर जो एंट जहाँ पर रहता है उसको बोलता है एंट हिल, ठीक है। एंड देन टेक्स अ फ्रेंड अलोंग टू फेच 1 गेन बैक टू बैक ईच एंड्स रिपीट दिस ट्रिप। मतलब यहाँ पे सपोज 100 जो है 1000 सॉरी शुगर का ग्रेन है, ठीक है, शुगर एंड ये है जो एंड का जो एंड हिल, ठीक है। तो यहाँ से एक फर्स्ट वन जो एंड यहाँ पर एक गेन लेके गया, देन क्या बोल रहा है, एंड रिपीट दिस ट्रिप ईच एंड एडिंग अ न्यू फ्रेंड एट एवरी ट्रिप। तो ये यहाँ पर 1 गेन लेके गया, यहाँ से कितना एंड आ रहा है, ये इसका एक फ्रेंड आ रहा है मतलब 1 + 1। देन यहाँ से 2 लेके गया तो इस दोनों का एक एक का फिर से 2 फ्रेंड मतलब टोटल 4 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट 1 गेन लेके गया, देन इसका 2 फ्रेंड, इसका और एक फ्रेंड आ रहा है मतलब 2 आ रहा है, 2 देन 2 गया, देन इस यहाँ पर 2 है, इसका ईच एक फ्रेंड मतलब दोनों का 2 फ्रेंड मतलब टोटल 4 फ्रेंड, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट ट्रिप में कितना आएगा, 4 का डबल होगा क्योंकि 4 एंड्स का ईच एंड का एक एक फ्रेंड मतलब टोटल 8 होगा। देखो ये 2 का पावर में बन रहा है, 2 + 2 टू द पावर 2 + 2 टू द पावर 3, देन 8, देन इसका भी डबल होगा क्योंकि ये 8 एंड का ईच का एक एक फ्रेंड होगा तो टोटल 16 आएगा। तो ये सम कब तक चलेगा, जो कि 1000 का इक्वल हो, ठीक है, फाइंड करना है इसका। देन होगा 32, देन होगा 64, देन होगा 128, देन होगा 256, देन होगा 512, ठीक है। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो एंड आप सम कर सकते हो, ठीक है। देखो आप ऐसा मतलब 256 तक सम करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 511, ठीक है। तो 511 ग्रेन टोटल यहां से यहां तक चला गया। देन देखो देन कितना टोटल आएगा, मतलब जो है एंड कितना आएगा 256 का डबल मतलब 512 पीपल एंड यहां से जाएगा, बट यहाँ पे गेन थोड़ा कम रहेगा। गेन कितना बचेगा 1000 माइनस 511, क्योंकि ऑलरेडी 511 ग्रेन्स जो है यहाँ से यहाँ तक चला गया। बट बोला है क्वेश्चन क्या बोला है द नंबर ऑफ एंड्स दैट वेंट आउट, मतलब यहाँ से निकालेगा कितना। देखो 511 इस टाइम हो गया, ठीक है, 256 का डबल एंड यहाँ से निकलेगा मतलब 512 टोटल नंबर ऑफ एंड यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो होगा 512, ठीक है। कुछ एंड जो होगा यहाँ से खाली ही आएगा, मतलब ग्रेन नहीं आप ले पाएगा क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इक्वल तो नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। समझो क्वेश्चंस को अच्छे से। देखो 256 मतलब जो है एंड निकलेगा लास्ट टाइम, तो ये टोटल इतना आ जाएगा, मतलब कितना ग्रेन आएगा 512, बट टोटल ग्रेन कितना है 1000, तो इसका डबल नेक्स्ट बार निकलेगा जो कि 511 + 512 1000 मतलब ग्रेटर देन 1000 हो रहा है। दैट मीन्स टोटल जो एंड निकला वो क्या निकलेगा 512, ठीक है। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, समझो अच्छे से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, अ hollow paper cone of height h and radius r is cut along the dotted line, okay fine, opened from the sector from a sector of a circle, find the angle of the subtend by the sector, okay fine। so देखो ये फास्ट क्या बन रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ से इसके साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हाइट के साथ, ठीक है। मतलब सेंटर ये सोचो आप ऐसे, ये जो है हाइट है, कोई एक काट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर रहा है जिसका हाइट मतलब h, रेडियस है r एंड ये फाइंड करना है सपोज l। तो l इक्वल टू क्या होगा √r² + h², ओके फाइन। नाउ यहाँ से
ये जो है ये डॉटेड लाइन बराबर इसको काटोगे तो क्या होगा, कैसे फिगर आएगा ऐसा टाइप का फिगर आएगा, ठीक है। ये सेक्टर फॉर्म करेगा, देखो यहाँ पर बोला है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो इसका जो ये एंगल का वैल्यू थीटा ये क्या हुआ, वी ऑल नो दैट एस इक्वल टू आर थीटा रिलेशन, फाइन। दिस इज द रेडियस। देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा ना, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस का वैल्यू होगा एल, ठीक है। इससे बराबर कर रहे हैं, मतलब ये जो एल होगा ये होगा वो जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस, मतलब यहाँ से आर लिख लो, ठीक है। एंड एस का वैल्यू हम जानते हैं, एस का वैल्यू मतलब ये कितना, मतलब ये पूरा के पूरा जो सर्कल का डायमीटर, सॉरी डायमीटर नहीं सर्कमफ्रेंस है वही होगा, ये जो होगा एक सेक्टर का मतलब जो लेंथ होगा, सेक्टर का लेंथ, इससे क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस बोला था आर, ये जो सर्कुलर पोर्शन है 2 पाई आर, तो एस का वैल्यू है 2 पाई आर, ठीक है। एंड आर का वैल्यू क्या होगा, ये जो बड़ा सॉरी ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, एस का वैल्यू है 2 पाई आर, एस इक्वल टू 2 पाई आर में रिलेशन में लिख रहा हूँ एस इक्वल टू आर के, क्योंकि यहाँ पर नोटेशन मतलब इधर उधर सेम हो जाएगा। 2 पाई आर इक्वल टू आर थीटा, आर का वैल्यू है इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस है ये वाला रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू ही फाइंड करना है 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर सॉरी ये तो कैपिटल आर रेडियस था, बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गिवन जो डेटा है कैपिटल में है, ठीक है, तो ये होगा आंसर आई थिंक ऑप्शन सी, 2 पाई कैपिटल आर बाई दिस वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ओके। Among the following pairs of number the smallest difference between, okay, so फर्स्ट एक नंबर क्या है, देखो एक एक यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एक में 10 टू द पावर माइनस 23 कॉमन लेता हूँ, तो क्या आएगा 1 ही है बोथ साइड में, तो ये आएगा 10 टू द पावर 46 माइनस 1। दो नंबर क्या है 10 टू द पावर माइनस 23 कॉमन ले लो, डिफरेंस निकल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका एंड इसका a माइनस बी निकल रहा हूँ, ठीक है, इच केस में। तो देखो 10 टू द पावर 23 माइनस 23 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 माइनस माइनस 1, ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, फाइन। नंबर 3 में क्या आएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर 23 कॉमन 1 माइनस माइनस 1, इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 4 नंबर पे जो आएगा यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 23, सॉरी लिख लो एक बार, ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस माइनस 1, मैं प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 टू द पावर 23 माइनस 23, तो यहाँ से मैं 10 टू द पावर माइनस 23 को कॉमन ले रहा हूँ, 10 टू द पावर 46 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये है 4 डिफरेंस, देखो 10 टू द पावर 23 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, देखो यहाँ पर 10 टू द पावर पॉजिटिव पावर है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको फास्ट ही डिस्कस कर सकते हो आप, ये पॉजिटिव पावर में है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिस्कार्ड हो गया, देखो देन जो है 10 टू द पावर माइनस 23 पावर कॉमन है, ठीक है, तो 3 क्या क्या बाकी है 10 टू द पावर 46 माइनस 1 एक डिफरेंस, दूसरा है 3 10 टू द पावर 46 प्लस 1, कौन सा मिनिमम, ये वाला, कौन सा ऑप्शन में, उस नंबर पे ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये था दिसंबर 2019 का असम का पेपर, ठीक है, असम एंड मेघालय का जो नेट हुआ था CSIR का, उसका पेपर सॉल्यूशंस जो रिक्वेस्टेड था, कोई नाम भूल गया मैं जो रिक्वेस्ट किया था, तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना, ठीक है, जो रिक्वेस्ट किया था उसका नाम भूल गया मैंने, ठीक है, एक कमेंट प्लीज करके जाना, ठीक है, कैसे लगा, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो एंड यू कैन कमेंट मी इफ आई मेड एनी मिस्टेक और यू कैन गिव एनी सजेशन, देन प्लीज यू कैन कमेंट मी, ऑलवेज ओपन, ओके। एंड दोज हु आर न्यू इन माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, थैंक यू भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। देखो मेरा गला का मतलब जो है गला खराब है, ठीक है बहुत, बट मैं तब भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू, चलो गुड नाइट, मिलते हैं अगला वीडियो में।